Good morning, dear students. Today our topic is relational database. Before starting relational database, we must know what is database. Database is a record keeping system. It is a collection of interrelated data so that it can be used by various applications. A database is a collection of data that is organized so that it can be easily accessed, managed, and updated. So, what is database actually? It is nothing but it is a collection of data organized in systematic and well managed way. Okay, we know the definition of data. Data is a collection of raw facts and figures which don't have their own existence. Data is unorganized, but what we do in database, we are collecting all the data. We know that data is unorganized and not in a systematic way, but we collect all the data, and after collecting the data we will organize that data in a systematic and well managed way. Okay, so when we collect the data and when we organize that data in a systematic way, it becomes database. Okay, now why we need database? To manage large chunks of data, for data integrity, for security of data, for ease of updating data, and for accuracy. All these points we will discuss later in the slide. Now, what is DBMS? DBMS stands for Database Management System. It is a software that is responsible for storing, maintaining, and utilizing database in an efficient way. A database along with DBMS software is called database system. Now, what is DBMS? DBMS is nothing but it is a software by which we are managing our data. Let us suppose we collect the data, and after collecting the data we organize that data in a systematic way and we store that data in our computer. Okay, now it becomes the database. So now what I want to do, I want to update that data. I want to, if I want to delete any data, so I need one software. That software is known as DBMS. Okay, so DBMS is a software by which we are managing our database. Now, example of DBMS software are Oracle MS SQL Server, MS Access, Paradox, DB2, and MySQL. These are the software that are used worldwide for database management. Okay, now what are the advantages of database system? Database reduces redundancy. Now what do you mean by redundancy? It is a duplication of data. ठीक है, अब लेट अस सपोज जो डेटा है डेटाबेस में, ठीक है, कोई भी दो डेटा आइडेंटिकल नहीं हो सकते. कोई भी दो डेटाबेस एंट्री क्या हो सकती हैं, वो आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं. इन अ सिंपल मैनर हम बोल सकते हैं कि किसी भी दो स्टूडेंट की पूरी डिटेल सेम नहीं हो सकती. उनका नेम सेम हो सकता है, उनका फादर नेम भी सेम हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, ठीक है, बट उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो क्या होगा, सेम नहीं होगा. तो दो एंट्रीज जो होंगी कभी भी सेम नहीं होंगी. यहाँ पर एंट्री का मीनिंग क्या है? एंट्री मीन्स किसी भी स्टूडेंट की एंट्री मीन्स उस स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन. तो किसी भी दो स्टूडेंट्स की कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो सेम नहीं हो सकती. नेक्स्ट पॉइंट इज डेटाबेस कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी. व्हाट डज इट मीन? व्हेन टू copies of this same data do not agree to each other, then it is called inconsistency. By controlling redundancy we can also control inconsistency. Now students, let us suppose एक कंडीशन यहाँ पर ऐसी इवॉल्व हो सकती है कि हमें क्या हो कि कोई भी दो स्टूडेंट्स की जो एंट्री है हमें चाहिए, ठीक है, सेम. फॉर एग्जाम्पल हमने एक डेटाबेस बनाया. उस डेटाबेस में हमारी दो टेबल हैं. एक टेबल है क्लास 12th के स्टूडेंट्स की
और सेकंड टेबल है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की। ओके, तो दो टेबल हैं, एक ही डेटाबेस में दो टेबल हमने बनाई है, दो डिफरेंट टेबल। ठीक, नाउ अब आप सबकी एंट्री क्लास 12th के टेबल में होगी। ओके, और कंप्यूटर साइंस की टेबल में भी होगी। तो यहाँ पर आपकी क्या हो गई, एक कंप्लीट बेस में बेस डुप्लीकेट हो गया, सेम एंट्रीज दो बार आ गई। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पर दो एंट्री आपकी एग्जैक्टली सेम हो रही है, तो हमें डेटाबेस को इस तरह से मैनेज करना होता है कि अगर हम एक एंट्री में चेंज करें तो दूसरी एंट्री में ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब लेट अस सपोज कि ये जो है टेबल्स में अब किसी भी स्टूडेंट का मुझे मोबाइल नंबर अपडेट करना है। ठीक है, अगर मैंने मोबाइल नंबर अपडेट किया है तो वो मोबाइल नंबर दोनों एंट्री से क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो क्लास 12th में तो अपडेट हो गया और कंप्यूटर साइंस से अपडेट नहीं हुआ हो। ठीक है, तो ही डेटा कंसिस्टेंट माना जाएगा। अगर ऐसा हो गया कि एक जगह से हुआ दूसरी जगह से नहीं हुआ तो डेटाबेस क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई है कि जहाँ पर दो एंट्री सेम हो रही हैं तो वहाँ पर उस एंट्रीज को इस तरह से मैनेज करना होगा कि अगर एक एंट्री में चेंज आए तो दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, उसे बार बार चेंज ना करना पड़े। थर्ड है इट डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, और बस ये बात है, अगर हमारे पास डेटा है तो डेटाबेस शेयरिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो डेटाबेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि हम डेटा को इजीली शेयर कर पाए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप सबकी इन्फॉर्मेशन है, हम बार बार रेगुलरली क्या करते हैं, उन इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक, डेटाबेस इंश्योर सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में सिक्योरिटी इज़ द बिगेस्ट कंसर्न। हम सबकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर है, हमारे बैंक डिटेल, हमारे अकाउंट्स में कितने रुपीज़ हैं, सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर हैं, एक डेटाबेस में स्टोर है। नहीं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो उनका सिक्योर होना क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो डेटाबेस ये इंश्योर करेगा कि वो प्रॉपरली सिक्योर हो हमारा। इट मेंटेन्स इंटीग्रिटी। नाउ इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है, देखो, इट इन्फोर्सेस सर्टेन इंटीग्रिटी रूल्स टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ करेक्टनेस ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, डेट कांट बी दैट, जो कि आपको दिख रही है यहाँ पर 31/31/2000। ठीक है, तो इंटीग्रिटी मीन्स क्या हो गया, हमने यहाँ पर कुछ ऐसे सर्टेन रूल बना लिए जिसके थ्रू क्या हो जाए कि डेटाबेस हमारा क्या हो, जो हम एंटर करें तो बिल्कुल करेक्ट करें। ठीक है, अब जैसे लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक एंट्री आपको दिख रही है, ये डेट का प्रॉपर फॉर्मेट है, डेट ऐसी लिखी जाती है, बट हमें ये पता है कि जो मंथ है वो कभी भी 31 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने पहले ही क्या बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए। ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस को एंट्री करने से पहले ही ये इंश्योर कर लें कि जो डेटाबेस इंसर्ट हो रहा है वो क्या है, करेक्ट है। और यही सम रूल्स क्या आते हैं, इंटीग्रिटी के अंदर आते हैं। नाउ अब डेटा के डिफरेंट मॉडल होते हैं। ठीक है, एक रिलेशनल मॉडल होता है, एक नेटवर्क मॉडल होता है, एक हायरार्किकल मॉडल होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटा इज शोन बाय लिंक्स। ठीक है, सिंपल एक यू कैन से कि आपका एक नेटवर्क की फॉर्म में होता है। ठीक है, एक हायरार्किकल वे पे जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, उस फ्लो चार्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसमें हम एक एंट्री को दूसरी एंट्री से लिंक की फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। हायरार्किकल डेटा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, इन अ सिमिलर वे ही क्या होता है, हायरार्किकल डेटाबेस भी होता है। इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज एज ट्री की फॉर्म में होते हैं, जो ट्री हमने डेटाबेस में पढ़ी हैं। रिकॉर्ड्स जो होते हैं एट द टॉप लेवल आर कॉल्ड रूट, जो टॉप लेवल पे होते हैं वो रूट रिकॉर्ड होते हैं। और इट में कंटेन मल्टीपल डायरेक्टरी लिंक्स चिल्ड्रन रिकॉर्ड, और उसके क्या होते हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, हायरार्किकल जो होता है वो ट्री की फॉर्म में होता है। ठीक, तो बट नेटवर्क क्या होता है, ट्री की फॉर्म में नहीं होता दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर ही होता है। बस यहाँ पर बात इतनी सी है कि जो
हायरार्किकल होगा, वो ट्री का स्ट्रक्चर होगा, उसमें चाइल्ड पेरेंट कॉन्सेप्ट होगा, पर नेटवर्क में ऐसा नहीं होता, उसमें कितने भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे काम होता है, ठीक है। इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट, इसमें जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। और जब हम उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्लास बन जाती है, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, बट जो डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं वो होता है रिलेशनल डेटाबेस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में जो डेटाबेस यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? रिलेशनल डेटाबेस है। इन दिस मॉडल डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं? टेबल की फॉर्म में करते हैं। एंड इसमें रोज को हम टपल और रिकॉर्ड बोलते हैं, और कॉलम्स को एट्रीब्यूट और फील्ड बोलते हैं, ठीक है। मीन्स जो टेबल होती है, टेबल कंटेन रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सबके नेम को चेंज कर दिया। टेबल को बोल दिया हमने रिलेशन, रो को बोल दिया रिकॉर्ड और टपल, और कॉलम को बोल दिया एट्रीब्यूट और फील्ड, ठीक है। बस नेम का फ़र्क है, और बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं टेबल रो कॉलम का वो क्या है? सेम है। तो यहाँ पर कुछ थ्योरी है प्रेजेंट की गई है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की। इसमें बोला गया है कि रिलेशनल डेटाबेस वॉज गिवन बाय E.F. कॉड ऑफ IBM, जिसने उन्होंने बनाया था, उनका नाम E.F. कॉड है। इन रिलेशनल डेटा मॉडल डेटा रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, वो टेबल की फॉर्म में रहते हैं। अ टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, ये हम सबको पता है। विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिलेशन, जिसको क्या बोलते हैं? हम रिलेशन बोलते हैं। इन अ टेबल रो shows relationship between values. A table is a collection of this relationship. Okay. अब जैसे कि लेटर सपोज यहाँ पर ही हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक डेटाबेस का नाम सप्लायर है, एक डेटाबेस का नाम आइटम है, और एक का नाम शिपमेंट है, ठीक है। इसमें जो है रिलेशन क्या है? आंसर बताओ, रिलेशन क्या होगा इसमें? रिलेशन जो होगा वो होगा सप्लायर, आइटम और शिपमेंट। और इसमें एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट है सप्लाई नंबर, सप्लाई नेम, स्टेटस, सिटी, आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस, सप्लाई नंबर, आइटम नंबर एंड क्वांटिटी सप्लाइड। एंड रिकॉर्ड क्या है? S1, S2, S3, ये कंप्लीट क्या है? मेरे रिकॉर्ड है, ठीक है। तो सप्लायर्स टेबल में सप्लाई नंबर, ये सब इसमें एंट्री है, ठीक है। यह सप्लाई नंबर एंड आइटम नंबर आदि प्राइमरी की क्या होती हैं हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नाउ रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी, जो भी हमारे टर्म यूज़ होते हैं हम उनको वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और रिलेशनल टेबल, रिलेशन मतलब टेबल ही होता है, और रिलेशनल और टेबल इज अ मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इन रोज एंड कॉलम। इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रिलेशन मतलब कहीं भी रिलेशन अगर यूज़ हो रहा है उसका मतलब क्या है? डायरेक्टली टेबल है, ठीक है। और टेबल में रोज एंड कॉलम होगी, और इस टेबल की दो प्रॉपर्टी होंगी, एक एटॉमिसिटी होगी और एक नो डुप्लीकेसी होगी, ठीक है। एटॉमिसिटी मीन्स क्या होता है? ईच कॉलम असाइन अ यूनिक नेम एंड मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यू, ठीक, एंड अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटॉमिक मीन्स क्या होगी? अगर किसी भी कॉलम में, जैसे कॉलम हमने मान लिया स्टूडेंट नेम, या हमने मान लिया सपोज रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसमें हर स्टूडेंट की जो एंट्री होगी वो यूनिक होगी कॉलम में, ठीक। एंड अगर वो क्या है? यूनिक भी होगी, और क्या होगी? और उसको फर्दर सब डिवाइडेड नहीं किया जा सकता, उसको फर्दर हम आगे क्या कर सकते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या होगी? एटॉमिसिटी होगी। लेट अस सपोज अगर यहाँ पर हमने बात कर ली कि और एक चीज़ और यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि सिंपली एटॉमिसिटी का मीनिंग है कि जो कॉलम में जितनी भी वैल्यू हो रही हैं वो उसको एक यूनिक नेम हम प्रोवाइड करें, और उस जो वैल्यू को क्या होंगी? वो वैल्यू फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। नाउ सेकंड है नो डुप्लिसिटी। नो टू रोज ऑफ रिलेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। कोई भी दो रोज की वैल्यू सेम एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं भले उनका नेम सेम हो जाए,
क्लास सेक्शन फॉरवर्ड सेम हो जाए, ठीक है, बट उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डिफरेंट होगा, तो पूरी की पूरी 2 एंट्रीज कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। और ऑल दी आइटम्स इन अ कॉलम आर होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स सेम डेटा टाइप, मीन्स एक कॉलम में अगर रोल नंबर है तो सारे के सारे इंटीजर ही होंगे, अगर नेम है तो सारे के सारे स्ट्रिंग ही होंगे। मीन्स एक पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम ही रहेगा। नाउ डोमेन, व्हाट इज डोमेन? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच द वैल्यूज इज डिराइव्ड फॉर अ कॉलम। नाउ लेट अस सपोज डोमेन होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमारी टेबल है। अब इसमें जो सप्लाई नंबर है, अब सप्लाई नंबर क्या है, S1 S2 S3 S4 एंड S5। इस पूरे कॉलम में जो वैल्यूज़, ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन आ सकता है, वही इसका डोमेन है। जैसे सप्लाई नंबर में क्या आ रहा है, S1 आ रहा है, तो इट इज़ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इसमें क्या आ सकता है, A to Z आ सकता है, स्मॉल a to Z भी आ सकता है, 0 to 9 आ सकता है, तो ये क्या है, इसका डोमेन है। अब सप्लाई नेम, ये जो स्ट्रिंग है तो इसमें इसका डोमेन क्या है, जो ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज दैट द एनी फील्ड कंटेन इज अ डोमेन। तो यहाँ पर भी A to Z, स्मॉल a to Z हम यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस, यहाँ पर जो इसका डोमेन है वो 0 to 9 है। अब लेट अस सपोज यहीं पर किसी का जेंडर होता, तो जेंडर क्या हो सकता है, 2 वैल्यूज पॉसिबल है या 2 से 3 वैल्यू पॉसिबल है। इट कैन बी आइदर मेल और फीमेल। ओके, सो उसके लिए डोमेन 2 ही वैल्यू, या तो वो मेल होगा या तो क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक। तो डोमेन आपका क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर जो मेरा कॉलम है, जो वो पॉसिबिलिटीज ऑफ वैल्यूज है, वही क्या है, उसका डोमेन है। बाइट, बाइट क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट यूज टू स्टोर अ करेक्टर सेट इज नोन एज बाइट। बाइट सिंपली मीन होता है 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, ये हम नॉर्मल मेमोरी यूनिट में पढ़े हैं। डेटा आइटम, डेटा आइटम क्या है, डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डेटा आइटम बोलेंगे। नाउ ट्रिपल, आइडेंटिटी एंड रिकॉर्ड, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रो को। रो को हम टपल भी बोल सकते हैं, रो को ही हम आइडेंटिटी भी बोलेंगे और रो को ही हम रिकॉर्ड भी बोलेंगे। एट्रीब्यूट एंड फील्ड, कॉलम को ही हम एट्रीब्यूट भी बोलेंगे, कॉलम को ही हम क्या बोलेंगे, फील्ड भी बोलेंगे। डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। और कार्डिनलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो ये जो सप्लायर टेबल है इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है 4, बिकॉज इसमें कितने हैं, 4 कॉलम है, सप्लाई नंबर, सप्लाई नेम, स्टेटस एंड सिटी। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 5, बिकॉज इसमें कितनी रोज है, 5, S1 S2 S3 S4 एंड S5, ठीक। तो दिस इज द डिग्री एंड कार्डिनलिटी। हम बात करते हैं व्यू की। व्यू क्या होता है कि इट इज़ अ वर्चुअल टेबल विच इज़ बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक डेटा ऑफ टेबल, ठीक है। अब लेट अस सपोज आप सबकी जो एंट्रीज हैं, ठीक है, आपकी जो एंट्री हमारे डेटाबेस में स्टोर है, सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, आपका नेम, क्लास, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आपका नेम और आपकी क्लास चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक व्यू क्रिएट करूँगा उस पर्टिकुलर डेटाबेस से। मैं सिर्फ क्या पिक करूँगा, आपका नेम, आपकी क्लास और आपका सेक्शन, उसी से मैं एक व्यू क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो वो एक वर्चुअल टेबल होगी। इट इज़ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल विच इज़ बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक डेटा ऑफ अ टेबल। कुछ स्पेसिफिक डेटा उससे पिक करके मैं एक व्यू क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो वो व्यू ही होगा खाली, और उसका वर्चुअल व्यू होगा, ठीक है। एक्चुअल में वो टेबल नहीं है जो आप व्यू बना रहे हो, ठीक है। टेबल तो क्या होगी, फिजिकली क्रिएट होगी, स्टोर होगी, बट व्यू क्या होगा, खाली उसको देखने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। फ़र्क टेबल में ये है कि जो हमारी टेबल होती है वो एक्चुअल होती है, वो रियल में एग्जिस्ट करती है, पर जो व्यू होता है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वो एक वर्चुअल टेबल की तरह काम करता है, ठीक। फिर हम बात करेंगे कीज़ की। अब कीज़ जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।